Hello students, today I am going to start a new chapter of Political Theory, class 11th, chapter 1, part 2, Political Theory and Introduction. So now we were in what is politics. तो politics है क्या? राजनीति है क्या? You will be noticed that people have different ideas about what politics is. Political leader and person who contest election and hold political office may argue that what is a kind of political public service. Some other associated politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. A few think of politics at what politicians do. इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनैतिक पद अधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं का दल बदल करते हैं, झूठे वादे और बड़े चढ़े दावे करते हैं, तो विभिन्न तरीकों से इनके जोड़ तोड़ करते रहते हैं। निजी या सामूहिक स्तर पर इससे घृणा और हिंसा का एक विवरण होता है और ये घोटाले भी करते रहते हैं। So that makes the party a false promises party. So now, this is in page number 3 of your textbook, the claim manipulating different sections, persuading personal or group interest ruthlessly, and it worst cases stopping to crime. They link politics with scam. So prevalent is in the way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by means possible, we say that they are playing politics. If we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father or colleague to the office mindlessly, agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. तो इसको हम दोबारा से थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या है ये पॉलिटिक्स। तो जो भी ये पॉलिटिक्स एक प्रचलित सोच है कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहे हैं और यही हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। लेकिन ये डिल्यूजन है। Of such pursuit of selfless, we disappear of the politics. We say, I'm not interested in politics, so I'm not going to stay away from politics. It is not only ordinary people who despair of politics, even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics, who their woes even as they benefit from the fun of the various political party. Cinema stars also complain of the politics, though they seem to have adapted at the game once they join it. We are confronted with conflicting images of politics. Is politics be undesirable activity that we should stay away? तो हम जानते हैं कि राजनीति एक दलदल है और केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि हमें यह भी पता चलता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में चंदा देने वाले व्यवसायी या हम कह सकते हैं बड़े राजनेता लोग जैसे राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित हो जाते हैं वैसे ही वे अपने को इस खेल में जोरदार समझने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है कि क्या राजनीति सच में एक गतिविधि है या हमें इसको अलग रहना चाहिए
या स्टे अवे मतलब पीछा छुड़ा देना चाहिए। गेट रिड अवे फ्रॉम इट मतलब इसमें शामिल ही नहीं हो चाहे कुछ भी करके। तो दिस which we must engage with in order to make a better world. It is unfortunate that politics had come to be associated with the pursuit of self-interest by way and every method. तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जोड़ा गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज को महत्वपूर्ण और अभिवज्य अंग है। तो जैसे कि हम देखते हैं महात्मा गांधी that politics evolve us like a coil of a snake and there is no other way out but wrestle with it. No society can exist without some form of political organization and collective decision making. A society that wants to sustain itself need to take into account of the multiple needs and interest of its member. A number of social institutions such as family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us to find ways of living together, acknowledging our obligation to each other. Among such institutions, government plays an important role part. तो महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जुड़ने के सिवाय कोई है। राजनीतिक संगठन हो या सामूहिक निर्णय, किसी के भी बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों को विविध जरूरतों को ख्याल में रखना पड़ेगा और यह आवश्यक है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संसाधनों जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करने की सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमारे साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाउ गवर्नमेंट मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस। तो ये भी एक तरीका है कि सरकार कैसे बनती और क्या सरकार को भी रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये एक तरीके का मास इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पेज नंबर 4 पे भी मिलेगा स्टार्टिंग। That are formed that how they function is thus an important focus on politics, but politics is not confined to the affair of government. Is relevant because it affects the life of the people in many different ways. We see that government determines our economic policy and foreign policy and educational policy. These policies can help to improve the lives of the people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security. तो हमें देखना है कि गवर्नमेंट का कार्य क्या है, लेकिन राजनीति सरकार के कार्य में सीमित नहीं होती। दरअसल सरकार जो भी करती है वह एक राजनीति जीवन शैली के दौरान ही करती है। तो हमें देखना भी होगा कि हमारी सरकारें आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति, ये नीतियाँ लोगों के जीवन में उत्पन्न है, सहायक है कि नहीं। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यदि सरकार सही नहीं है तो वो लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी। इसका एक और उदाहरण है, इफ़ अ गवर्नमेंट इन द पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, मार्केट क्लोज डाउन, schools are shut, the disputes are live, we cannot buy things and we need urgently, those who are sick cannot reach to the hospital, even the school schedule get affected, syllabus will not be completed, take extra coachings of the exam and pay tuition fees. In other words, the government make policies to increase literacy and employment. We may get an opportunity to go to good school and get a good job since the action of the government affect. तो इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि नीतियाँ तो जीवन में ज़रूरी हैं, पर अगर गवर्नमेंट सही नहीं है और वह दंगा फसाद करवाती है,
बाजार स्कूल बंद हो जाते हैं और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते। स्कूल के समय भी प्रभावित होती है। एक तरीके का सिलेबस प्रभाव होता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उनके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। तो दूसरी ओर सरकार अगर सुरक्षित और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हम अच्छे स्कूलों में जाने और बेहतर रोजगार पाने का अवसर मिल सकता है। तो यही लिखा है इसमें। So we form, associate and organize campaigns to articulate our demands. We negotiate with other and try to shape the goals of the government pursuing. तो ये we have to disagree with the policies of the government, protest and organize demonstrations to persuade the government to change the existing laws. We passionately debate the action of our representatives and discuss whether corruption has increased or decreased. We ask whether corruption can be rooted out, whether reservation for specific groups are just or not. तो चूंकि सरकार कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है तो हम सरकारों के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाने और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार भी करते हैं, बातचीत करते हैं, सरकार की नीति लक्ष्यों को देखते हैं, सरकारी नीतियों की सहजता करते हैं, वर्तमान कानून को बदलने के लिए सरकारों को राजी करते हैं और अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वी अंडरस्टैंड व्हाई पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन अ वे वी लुक टू रेडिकेट अंडरलाइंग अ प्रिविलेंट cause and delay and aspire to create a better world. To sum up, politics arise from the fact that we have different visions of what is just desirable for us and how our political influence. तो किसी खास समूह के लिए संरक्षण करना तो ज़रूरी है, हमें ये समझने का भी प्रयास करते रहना पड़ेगा कि कई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अर्थव्यवस्था और पतन का कारण ना बने और ना तलाशें और एक अंकुश लगा के रखें अपने जीवन में आगे जाके। तो क्या ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी डेली लाइफ को? क्या ये सामाजिक व्यवसाय हमारे जीवन को क्या एक इन्फ्लुएंशियल काम करता है? तो ये भी हम देख सकते हैं एक कि किस दृष्टि से ये हमारे लिए एक अलग कार्य करे। तो it involves a multiple negotiation and go on in a society though which collective decisions are taken. At one level, it involves what government do and how they relate to the aspiration of the people. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. People may be said to engage in political activities whenever they negotiate with each other, take part in the collective activities. Resolve common problem. तो एक स्तर ये है कि हमें इसमें जुड़ा और शामिल होना चाहिए और दूसरा स्तर है कि जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वर्त करती है तो उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है और सामाजिक विकास को बढ़ाती है। तो सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य के दौरान कहा जाता है कि जनता राजनीति के संकलन है। मतलब it is a part, people are the part of the political society and development of society. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी स्टडी इन अ पॉलिटिकल थ्योरी, ये मैं थर्ड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।